بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم صدق الله العلي العظيم اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا ہے۔ ایمان والے وہی ہیں کہ جب اللہ یاد کیا جائے ان کے دل ڈر جائیں، اور جب ان پر اس کی آیتیں پڑھی جائیں ان کا ایمان ترقی پائے، اور اپنے رب ہی پر بھروسہ کریں، وہ جو نماز قائم رکھیں اور ہمارے دیے سے کچھ ہماری راہ میں خرچ کریں۔ یہی سچے مسلمان ہیں، ان کے لیے درجے ہیں ان کے رب کے پاس اور بخشش اور عزت کی روزی۔ سچ فرمایا اللہ نے، وہی بزرگ و برتری والا ہے۔ لو مدینے کی تجلی سے لگائے، لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں، لو مدینے کی، ہاں لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں، دل کو ہم مطلع انوار بنائے ہوئے ہیں، لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں۔ کشتیاں اپنی، ہاں کشتیاں اپنی کنارے سے لگائے ہوئے ہیں، کیا وہ ڈوبے جو، ہاں کیا وہ ڈوبے جو محمد کے ترائے ہوئے ہیں، لو مدینے کی
تجلی سے لگائے ہوئے ہیں. سر پہ رکھ دیجئے ذرا دست تسلی، آقا غم کے مارے ہیں زمانے کے ستائے ہوئے ہیں، غم کے مارے ہیں زمانے کے ستائے ہوئے ہیں. شرم سیاہ سے یا رسول اللہ، شرم سیاہ سے نہیں سامنے آیا جاتا، یہ بھی کیا کم ہے تیرے شہر میں آئے ہوئے ہیں. حاضر و ناظر و نور و بشر و غیب کو چھوڑ، شکر کر وہ تیرے عیبوں کو چھپائے ہوئے ہیں. کیوں نہ پلڑا تیرے اعمال کا بھاری ہو نصیر، اب تو سرکار بھی میزان پہ آئے ہوئے ہیں، اب تو سرکار بھی میزان پہ آئے ہوئے ہیں. لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام حمد ہے اس خالق ازل کے لیے، سکون جھیل کو دیتا ہے جو کمل کے لیے. میں ان کے نام سے کرتا ہوں ابتدائے کلام کہ جن کے نام فرشتوں نے بھی سنبھل کے لیے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں آج انٹرٹینمنٹ اور آج نیوز کی خصوصی سحری نشریات باران رحمت، اور میں ہوں آپ کا میزبان سید فرحان علی وارث. آج انشاءاللہ ہم لوگ 26 روزہ اختیار کریں گے، اور ساتھ ساتھ یہ بتاتے چلیں کہ ہم روز ہی ظاہر ہے کسی نہ کسی موضوع کے ساتھ آتے ہیں اور علماء اکرام سے اس کی رہنمائی حاصل کرتے ہیں. ہم ہیں مسلمان، اور مسلمان کہتے ہیں مسلم ایمان والے کو. ایمان کا ہونا کتنا ضروری ہے کہ قرآن میں اللہ واضح طور پر صاحبان ایمان کی خصوصیات بیان کر رہا ہے کہ یقیناً ایمان والوں نے یعنی کامیابی حاصل کی، جو کہ اپنی نماز میں خوف خدا سے ڈرتے رہے، جو لغویات سے منہ کو موڑتے رہے، جو زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں، جو اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنے والے ہیں. تو یہ صاحبان ایمان کی وہ خصوصیات ہیں جو کامیاب ہونے والے انسان کی خصوصیات ہوتی ہیں. حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں کہ میرے پیارے آقا خاتم الانبیاء سردار الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، عمل کے بغیر ایمان قبول نہیں، اور نہ ہی ایمان کے بغیر کوئی عمل قبول ہوگا. گویا ایمان اور عمل دونوں لازم و ملزوم ہیں. ایمان کا ہونا اور عمل کا ہونا، یہ دونوں کا ایک ساتھ ہونا بہت ضروری ہے. اور پھر سرور کائنات میرے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کا دل اور اس کی زبان ہم آہنگ نہ ہو. یعنی اس کا دل اور زبان، یعنی جو دل کہہ رہا ہے وہی زبان کہے. یہ نہ ہو کہ دل میں کچھ زبان سے کچھ ادا ہو رہا ہے. دل اور زبان ایک ساتھ ہونی چاہیے. یہ دل اور زبان کا ایک ساتھ ہونا بھی ایمان کی نشانی ہے. حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں مولا کائنات کل ایمان امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ایمان ایک ایسا درخت ہے، ایمان ایک ایسا درخت ہے جس کی جڑ یقین اور جس کی شاخ پرہیزگاری ہے. امام رضا
अलैहिस्सलाम इब्न इमाम मुसा काज़िम अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि ईमान वो है जो दिल में रासिख हो और आमाल उसकी तस्दीक करें, यानी आपके आमाल जो आपके ईमान की तस्दीक कर रहे हैं। अब जिस मामले में हम बात कर रहे हैं ईमान के हवाले से, जिस मामले को हम अल्लाह पर छोड़ देते हैं, हम मुसलमान हैं, जैसे मैंने शुरू में बताया कि मुसल्लम ईमान वाले को कहा जाता है मुसलमान। हम अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं, लेकिन क्या वजह है कि जिस मामले को हम अल्लाह पर छोड़ दिया जाता है, बार बार उस पर सोचते भी रहते हैं। अल्लाह पे छोड़ भी दिया, अल्लाह तू करम कर, तू रहम कर, तू देख हमने तुझ पे कह दिया, लेकिन फिर भी शक व शुबा जहन में रहते हैं। तो ये भी ईमान की कमज़ोरी है, हमें इसको दूर करना है, ईमान को मजबूत करना है। हम मुसलमान और मोमिन होकर भी अपने ईमान को मजबूत नहीं कर पाते, इसकी क्या वजह है? बहुत सारी वजूहात हैं जो हमें उलमा कराम बताएंगे। हमदनात का सिलसिला भी जारी व सारी रहेगा। किचन के अंदर भी हम आपको बताएंगे क्या क्या रेसिपी हैं। एल्सा काजी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उमैर मेमन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, और आबिद रिजवी साहब, मौलाना आबिद रिजवी साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, और हमारे साथ होंगे मौलाना अब्बास मेहदी तुराबी साहब, और नात खान हमारे साथ मौजूद होंगे। उनका तारुफ हम आगे ट्रांसमिशन में साथ साथ कराते रहेंगे। कारी नौमान साहब का हम शुक्रिया अदा करते हैं जो इब्तिदा में तिलावत कुरान पाक की सादत हासिल करते। आते हैं मुख्तसर से वक्फे के बाद, देखते रहिए बरान रहमत। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक नाज़रीन। आप देख रहे हैं बारान रहमत, आज इंटरटेनमेंट की खुसूसी सरी नशरियात। अब वक्त हुआ है किचन का, किचन की तरफ चलते हैं। और किचन में हम जब देखते हैं तो डालडा कुकिंग ऑयल वनस्पति को देखते हैं। हम कहते हैं जहाँ ममता वहाँ डालडा, और कुदरती जड़ी बूटियों से तैयार करदा करशी का जाम शीरी जो कि हमें एनर्जी भी देता है, और हड्डियों की मजबूती के लिए दूध का पीना बहुत ज़रूरी है, और इसलिए ऑलपर्स का इस्तेमाल हम यहाँ करते हैं। विटामिन सी जो है हमारी क़ुव्वत मुदाफ़त को मजबूत बनाता है, इसलिए टैंक के अंदर विटामिन सी है, इसलिए टैंक बड़ा एनर्जी देता है हमें। और इसके साथ साथ हमारे साथ मौजूद हैं एल्सा काजी साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। तैयारी मुकम्मल है एल्सा? जी बिल्कुल तैयारी मुकम्मल है। आज क्या बता रही हैं आप नाज़रीन? आज बड़ी स्पेशल किस्म की कढ़ाई है। अच्छा, इसका नाम है चिकन मंचूरियन कढ़ाई। चिकन मंचूरियन कढ़ाई? जी, आपने चिकन मंचूरियन, जी बिल्कुल, चिकन मंचूरियन आप अलग खाते हैं, कढ़ाई अलग खाते हैं, तो ये जो है दोनों का कॉम्बिनेशन है चिकन मंचूरियन कढ़ाई। अच्छा। बड़ी ज़बरदस्ती होने वाली, मैं अभी से बता दूंगी आपको। अच्छा, तो जी अब रेसिपी की तरफ बढ़ते हैं हम। चिकन मैंने पहले से बॉईल कर लिया है, यहाँ पे बस टाइम वक्त बहुत कम होता है, तो इसलिए आप चाहें तो कढ़ाई में वैसे ही डाल दें कच्ची चिकन। तो मैंने चिकन बॉईल ले लिया है, यहाँ पर अदरक लहसुन का पेस्ट ले लिया है, मैंने काली मिर्चें पिसी हुई ले ली है, नमक ले लिया है, लाल मिर्चें ले ली है, और मैंने चिली सॉस और सोया सॉस लिया है, और 3 वेजिटेबल्स का इस्तेमाल किया, 3 सब्जियां, शिमला मिर्च, गाजर और हरी प्याज बारीक कटी हुई, और ये जुलियन कटे हुए शिमला मिर्च और गाजर। अब मैं इसमें इस्तेमाल करूँ, ऑयल मैंने पहले ही डाल चुकी हूँ, मैंने 4 टेबल स्पून मैंने ऑयल डाल दिया, ऑयल गर्म कर चुकी हूँ। तो अब मैं इसके अंदर चिकन डाल दूँगी, फ्लेम हम तेज़ कर दें, और साथ ही साथ हम इसके अंदर डाल देंगे जिंजर गार्लिक का पेस्ट, लहसुन और अदरक का पेस्ट। ये तकरीबन ले लेंगे हम 2 टेबल स्पून। इसमें कोई ख़ास वो नहीं है कि आप क्या चीज़ पहले डालें, सारे मसाले आप एक साथ डाल सकते हैं। काली मिर्चें पिसी हुई मैं साथ ही डाल दूँगी, मैंने तकरीबन 1 टेबल स्पून डाल दिया, और नमक भी 1 टेबल स्पून डाल देंगे हस्बे ज़रूरत। साथ ही साथ हम लाल मिर्च डाल देंगे। अक्सर अमूमन क्या होता है घर पे कि जब बहुत अचानक से कोई दावत होती है तो हम कोई ऐसी चीज़ सोचते हैं कि जो जल्दी बन जाए, टाइम कम ले, तो आप कढ़ाई बनाते हैं कि बस कढ़ाई है जो बहुत जल्दी बन सकती है। तो आप जब कढ़ाई बनाए तो क्यों ना आप चिकन मंचूरियन कढ़ाई बनाएं, है ना, इसका अच्छा रिप्लेसमेंट जल्दी से बनने वाला। अच्छी चीज़ सोची आप। जी बिल्कुल, तो आप ये बना सकते हैं। इसका ये है कि फ्लेवर भी बड़ा अच्छा सा आता है और जल्दी भी बन जाती है। सब्जियाँ हम डाल देंगे, बस इसकी जो कुकिंग टाइम है वो सिर्फ 5 मिनट है, जब तक ये इसकी वेजिटेबल्स पक ना जाए, तक कच्चापन ख़त्म ना हो जाए, और ये तैयार हो जाता है। तब तक आप इसको, जी बिल्कुल, अब हम इसको घुमा लेंगे। अभी मेरे पास वक्त कम है तो मैंने इसकी फ्लेम हाई रखी है, आप इसको मीडियम फ्लेम में पकाइएगा। इस तरह से हम सबको मिक्स कर लेंगे। यानी चंद मिनट के अंदर हमें मंचूरियन कढ़ाई मिल जाएगी। जी बिल्कुल, डबल इतनी देर में तो चाय भी बन जाती है। जी बिल्कुल। चाय से मुझे याद आया कि आपको लगता है कि आपकी चाय में भी कुछ कमी सी है, तो आप लाएं डालडा का कप शप। मैं भी यहाँ चाय पीऊँगी ज़बरदस्त सी।
ये आप डालो, इस चाय का मज़ा दुबाला कर दे तो बहुत ये डालडा वालों ज़बरदस्त का है? फ्लेवर। जी बिल्कुल, उन्होंने इसमें चाय दूध निकाला है, इनका नाम है कप शप डालडा। बड़ा ज़बरदस्त सा फ्लेवर दिखाएं आता ज़रा है, बहुत नाज़रीन को अच्छी, दिखा दें ताकि उनको पता भी चले। बड़ा ज़बरदस्त सा फ्लेवर आ जाता है, बहुत अच्छी मज़े की चाय बन जाती है। ज़बरदस्त। साथ ही साथ अपनी कढ़ाई को भी देखते हैं, अब देखेंगे बिल्कुल आपको अगर जूम करके दिखाएं तो बड़ा अच्छा सा कलर आया हुआ है। हाँ कलर दिखाएं जूम करके कढ़ाई को। अब बस हम इसको निकाल लेंगे। सब्जियां भी कुछ हद तक पक चुकी हैं, ज़्यादा हम बिल्कुल पकाते नहीं है, बहुत अच्छा, ज़्यादा चिकन नरम आपने नहीं पहले करते से थे। बॉईल कर जी लिया था ना, बिल्कुल, चिकन टाइम की पहले से वजह बॉईल, से। तो इस वजह से ये जल्दी बन गया है। अब इसको डिश आउट करूँगी मैं। आप चाहें तो उसको रोटी के साथ खा सकते हैं, चावल के साथ खा सकते हैं, ब्रेड के साथ खा सकते हैं, ये आपकी चॉइस है। ज़बरदस्त। देखें झटपट बनने वाली, बस ये तैयार हो गई हमारी चिकन मंचूरियन कढ़ाई। फ्लेवर, बड़ी खुशबू भी बहुत अच्छी सी आ रही है, मज़ेदार सी खुशबू आ रही है। बहुत ज़बरदस्त किस्म का आपने बना दिया है तो, और यकीनन नाज़रीन आपको ये पसंद भी आया होगा और आपने इस रेसिपी को नोट भी किया होगा। एल्सा काजी साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि इतने कम वक्त में आप हमें झटपट बता देती हैं क्या है। नाज़रीन एक मुख्तसर से वक्फे के पास वक्फे की तरफ चलते हैं। हमारे साथ उलमा कराम भी मौजूद होंगे। इस वक्फे के फ़ौरन बाद आएंगे तो होगा तकरीरी मुकाबला, और ये मुकाबला आप देखिएगा, बहुत खूबसूरत मुकाबला है, मेरा और आपका पसंदीदा सेगमेंट भी है। उलमा कराम से बातचीत भी रहेगी और नातिया कलाम भी होते रहेंगे। देखते रहिए बारहान रहमत। आते हैं बस मुख्तसर से वक्फे के बाद। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं बारहान रहमत, और अब हम दोबारा आपको एक नई रेसिपी की तरफ लेकर चलते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं उमैर मेमन भाई। अस्सलाम वालेकुम, कैसे उमैर भाई? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? मज़ा आ गया परसों खाओ से खा के, फिर कल गोला गंडा खा के, आज क्या रेसिपी? आज मैं मलाई बोटी पराठा बनाऊंगा। अच्छा, ज़बरदस्त, माशाल्लाह। क्योंकि रमज़ान भी चल रही है तो पराठे ज़्यादा खाए जाते हैं। जी जी जी, किस तरह से बना रहे हैं, क्या रेसिपी है? देखिए, ये तो मैंने मैरिनेट कर दिया है पहले से। इसके अंदर मलाई डली हुई है और तिक्का फ्लेवर डला हुआ है, उन दोनों को मैंने मैच करके ये तैयार कर लिया है। अब इधर वक्त थोड़ा कम होता है तो थोड़ा सा पहले तैयारी करनी पड़ती है। तो आटा भी वैसे बेसिकली लोग घर में गूंद ही लेते हैं, तो आटे की रोटी भी मैंने बना ली है। सही। और मैं आपको बता दूं, ये डबल ते के साथ जो ये पराठा बनता है, ये थोड़ा सा हैवी होता है। अच्छा, किस तरह से ज़रा बताइए। ये पहले एक रोटी के साथ जो है मैरिनेट चिकन जो इसके ऊपर हम डाल देंगे। अच्छा, ज़बरदस्त। इसको थोड़ा सा फैला के फिर इसके ऊपर डबल तेल लग जाएगी। अच्छा, डबल का है, वाह वाह। ये भी दोराजी में मिलता है? जी बिल्कुल, आपकी शॉप मिलेगा इंशाल्लाह। फिर इसको हम फोल्ड कर लेंगे। अच्छा, सब गोल गोल फोल्ड कर रहे हैं? जी, ज़बरदस्त। ये एक बंदे के लिए काफ़ी होता होगा मेरे ख्याल से, है ना? बंदा एक भी खा सकता है और दो भी खा सकते हैं। ये थोड़ा हैवी होता है, अच्छा, तो ये हमने फोल्ड कर लिया ऐसे। अब हम इसको तल लेंगे। ठीक, कितनी देर तलते हैं इसको? कम से कम 10 मिनट लगेंगे इसमें। चले, आप क्योंकि इसको तलिए। और उमैर मेमन भाई का जो आउटलेट है, जो शॉप है, वो दोराजी में है ना? दोराजी में इंशाल्लाह आएंगे रमज़ान के बाद। और आप लोग भी जितने नाज़रीन इस वक्त देख रहे हैं, ज़रूर जाइएगा इनकी शॉप पर और फिर वहाँ मज़े मज़े की चीज़ें आप खाइएगा। नाज़रीन, अब वक्त हुआ है डिबेट कंपटीशन यानी स्पीच कंपटीशन का, जिसमें तकरीरी मुकाबला है। जिन्ना का पाकिस्तान फाउंडेशन की जानिब से मुकर्रिरीन हमारे पास आते हैं और वो तकरीर करते हैं और हम उनको मौजू एक देते हैं, और जो जीतने वाली टीम होती है उनको यूथ फाउंडेशन की तरफ से गिफ्ट हैम्पर मिलता है। कराची की शान पिज़्ज़ा स्पाइस की तरफ से गिफ्ट हैम्पर मिलता है। और इस सेगमेंट के लिए ताउन किया है 9 ट्रैवल एंड टूर्स ने, कि जो कि हज, उम्रा और ज़ियारत मुक़द्दसा के हवाले से काबिल एतमाद नाम है। जब भी आपको हज, उम्रा और ज़ियारत करने जाना हो हमारे साथ, ये हमारी कंपनी, तो आप इनके साथ हमारे साथ जा सकते हैं। हमारे साथ उलमा-ए-कराम मौजूद है, मौलाना आबिद रिजवी साहब और मौलाना अब्बास मेहदी तुराबी साहब।
بہت شکریہ آپ دونوں علماء کرام کا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں جی قبلہ. آپ سے تو رہنمائی حاصل کریں گے ہم آج کا، کیونکہ موضوع ہمارا ہے ایمان کی مضبوطی. اس سے پہلے ڈیبیٹ تقریری مقابلہ اسپیچ کمپٹیشن ہے. ہم چاہتے ہیں کہ پہلے ہم ان سے تقریر سن لیں، آپ دونوں حضرات کی رائے بھی ہوگی تاکہ اس پہ فیصلہ کر دیا جائے. ہماری پہلی مقررہ ہیں سکینہ شاہد اور دوسرے مقرر ہیں نجف احمد صاحب. میری درخواست ہے پہلے سکینہ شاہد صاحبہ سے کہ وہ روسٹرم پہ تشریف لائیں. السلام علیکم. کیسے ہیں سکینہ؟ تیار ہیں؟ بالکل تیاری پکی ہے آج؟ مضبوط تیاری. بسم اللہ کیجیے. آپ کا موضوع ہے اس دور کا حاکم کہتا ہے چپ. بسم اللہ. اجازت ہے؟ جی بسم اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزت نفس کسی شخص کی محفوظ نہیں، عزت نفس کسی شخص کی محفوظ نہیں، اب تو اپنے ہی نگہبان سے ڈر لگتا ہے. ڈنکے کی چوٹ پہ ظالم کو برا کہتی ہوں، مجھے سولی سے نہ زندان سے ڈر لگتا ہے. صدر علی وقار وہ قومیں تاریخ کے اوراق میں غرق ہو کر رہ جاتی ہیں جنہوں نے تعلیم کو اپنا زیور نہیں سمجھا، جنہوں نے اسلامی تعلیمات پر عمل نہیں کیا. افسوس آج ہمارے ملک کی عوام فقط ایک روٹی کو ترس رہی ہے، لیکن ہمارے ملک کے حکمرانوں کے پاس اتنی دولت ہے کہ ان کی 7 نسلیں بھی بیٹھ کر کھائیں. ارے حکمرانوں کے بنائے ہوئے اس نظام کی بدولت آج امیر دن بدن امیر اور غریب دن بدن غریب ہوتا جا رہا ہے. افسوس کہ ہمارے انبیاؤں کی بتائی ہوئی سنتوں پر تو آج غیر مسلم بھی عمل کرتے نظر آ رہے ہیں. کہیں بار امامہ کو ریسٹورنٹس میں کھانا پکاتے دیکھا گیا تو کہیں آسٹریلیا کے وزیر اعظم کو سائیکلوں پر سفر کرتے دیکھا گیا. لیکن جناب والا اگر ہم اپنے ملک کے حکمرانوں پر نظر ڈالیں تو یہاں پر میں نے چھوٹے چھوٹے بچوں کو پھٹے پرانے کپڑوں میں گاڑیوں کے شیشے صاف کرتے دیکھا، تو میں نے دوسری طرف ملک کے حکمرانوں کو بڑی بڑی گاڑیوں میں پروٹوکول کے ساتھ دیکھا. ارے ایک طرف میں نے ملک کے پڑھے لکھے نوجوانوں کو ہاتھوں میں ڈگریاں لیے بے روزگار دیکھا، تو میں نے دوسری طرف انگوٹھا چھاپ سفارشیوں کو بڑے بڑے عہدوں پر فائز ہوتے دیکھا. صدر علی وقار ایک طرف میں نے 5-10 ہزار کی موبائلوں کی خاطر گولیاں چلتے دیکھی، تو میں نے دوسری طرف ملک کے حکمرانوں کے بچوں کے ہاتھوں میں 5-5 لاکھ کے کھلونے دیکھے. ارے کیا انہیں حضرت علی کا وہ قول یاد نہیں کہ جس ریاست میں ایک غریب بھی روٹی چوری کرتے ہوئے پکڑا جائے تو اس قوم کے حکمران کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں گے. صدر علی وقار جب سے ہمارے ملک میں لاک ڈاؤن ہوا لوگ بیماری کے بجائے غربت سے مرنے لگے. ارے کہاں ہے وہ حکمران جو فقط ایک ووٹ کی خاطر لوگوں کے محلوں میں جا کر لیپ ٹاپ کی لالچ دیا کرتے تھے. افسوس حکم خدا ہے کہ ایک ہاتھ سے دو مگر دوسرے ہاتھ کو خبر تک نہ ہو، اور حقیقتاً ایسا ہی ہوا. ارے ہمارے ملک میں لاکھوں کروڑوں کا راشن تقسیم ہو گیا مگر غریبوں کو خبر تک نہ ہوئی. یہ ملک کورونا وائرس سے کیسے لڑے گا جہاں ایک صابن کی ٹکیا دے کر سوشل میڈیا پر وائرل کر کے غربت کی تذلیل کی جاتی ہو؟ ارے جہاں ایک آٹے کا تھیلا دے کر تصویریں بنوائی جاتی ہو. صدر علی وقار اپنے تو وہ ہوتے ہیں جو تکلیفوں میں ساتھ کھڑے ہوں، نہ کہ تصویروں میں. آج ہمارے ملک میں غربت کا یہ عالم ہے کہ مائیں خودکشی کرنے پر مجبور، باپ خود کو آگ لگانے پر مجبور، ارے بچوں کو بھوک و پیاس میں تڑپ دے کر پھانسی کے پھندوں پر لٹکانے پر مجبور ہیں. مگر افسوس کہ اب بھی اس قوم کا حکمران کہتا ہے خاموش، چپ چاپ سزائیں سہتا جا، چپ چاپ سزائیں سہتا جا. ارے حکمرانوں آپ نے ہمیں تو چپ کرا لیا مگر آپ کو اللہ کی عدالت میں جواب ضرور دینا ہوگا. شکریہ. بہت شکریہ. یہ تھیں سکینہ شاہد صاحبہ. میرے دوسرے مقرر سے درخواست ہے نجف احمد صاحب سے کہ وہ روسٹرم پہ تشریف لائیں پلیز. السلام علیکم. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ تیاری ہے پوری؟ جی آپ کا موضوع ہے اس دور کا حاکم کہتا ہے چپ. بسم اللہ. مجھ سے نہ ہو سکے گا باطل کا احترام، میری زباں کے واسطے تالے خرید لو. صدر علی وقار اس دور کا حاکم کہتا ہے چپ. یہ وہ خاموشی ہے جس کی 70 سال پرانی تاریخ ہے، جو کبھی مصلحتاً نافذ ہوا تو کبھی بزور طاقت نافذ کروایا گیا. صدر علی وقار یہ کبھی میڈیا کے اوپر پابندی لگائی جاتی ہے تو کبھی صحافیوں کو اغوا کر لیا جاتا ہے. کبھی صدر علی وقار یہ وہ پابندی ہے جو کبھی ریڈیو اور ٹیلی ویژن کے اوپر لگائی جاتی تھی، آج وہی پابندی ویلاگ اور بلاگنگ کے اوپر لگائی جاتی ہے، کیونکہ صدر علی وقار اس دور کا حاکم کہتا ہے چپ. صدر علی وقار لیکن میں کیسے چپ رہوں کہ میں نے اپنی ان گناہگار آنکھوں سے سانحہ سائیوال ہوتا ہوا دیکھا کہ جس کے معصوم بچے آج بھی حکمران وقت سے سوال کرتے ہیں، لیکن حکمران وقت کہتا ہے چپ. صدر علی وقار میں کیسے بھول جاؤں اے ٹی ایم کے اوپر منہ چڑھانے والے صلاح الدین کی لاش کو کہ جو حکمران وقت سے سوال کرتی ہے کہ تسی مارنا کہ تو سکھیا، لیکن اس دور کا حاکم کہتا ہے چپ. صدر علی وقار نقیب اللہ ہو یا بربریت کا نشانہ بننے والا سرفراز یا ناحق قتل کیا گیا شاہ زیب، ہر ایک کی لاش حکمران وقت سے سوال کرتی ہے.
लेकिन इस दौर का हाकिम कहता है चुप। बात आगे बढ़ाते हैं सदर अली वकार। कराची के इदारों के अंदर आज भी कोटा सिस्टम बबांगे दोहल गूंजता है, लेकिन जवाब देने वाले खामोश हैं। कराची की दौलत लूटे जाने पर शहरी जवाब के मुंतजिर हैं, लेकिन जवाब देने वाले खामोश हैं। बल्दियाती निज़ाम की दुरुस्तगी हो या सतही बुनियादों पर होने वाली नाइंसाफियां अवाम हुक्मरान वक्त से सवाल करती हैं, लेकिन जवाब देने वाले खामोश हैं। यहाँ सदर अली वकार, मेरे एक जानिब 27 दिसंबर, 12 मई मॉडल टाउन और APS जैसे खून आशाम सानेहात है, तो दूसरी जानिब तहकीकाती कमीशन, कमेटियां और ऑर्डिनेंस हैं। वो ऑर्डिनेंस जिन पर अमल नहीं होता, वो कमेटियां जो रिपोर्ट पेश नहीं करती, और सदर अली वकार कमीशन तो हमेशा से ही गूंगे बहरे हैं, क्योंकि इस दौर का हाकिम कहता है चुप। लेकिन सदर अली वकार, ये वो चुप है जिसकी वजह से ज़ैनब की इज्जत लूटी जाती रही। ये वो चुप है जिसकी वजह से कश्मीर के अंदर माओ की रिदाएं छीनी जाती रही। ये वो चुप है जिसकी वजह से चेचनिया, बोस्निया, ईरान, इराक और शाम के अंदर जुल्म और बर्बरियत की दास्तानें रकम की जाती रही। ये वो चुप है जिसकी वजह से थर के सहराओं के अंदर भूखे बच्चे सिसक सिसक कर मरते रहे। लेकिन सदर अली वकार, अब इस चुप के रोजे को तोड़ना होगा। अपनी जबानों पर लगे इन तालों को अब तोड़ना होगा। आखिर में बस इतना ही कहूंगा कि तेरे गुनाहों के पापों को सरे बाजार फोड़ जाऊंगा। मिसले इब्राहिम जुल्मत के बुतों को तोड़ जाऊंगा। लश्कर करेंगे मेरी दिलेरी पे तबसरे, मरकर भी जिंदगी की खबर छोड़ जाऊंगा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। नजफ अहमद साहब, आप भी रोस्टम पे तशरीफ लाएं। सुकैना शाहिद साहिबा, आप भी आ जाइए। जी मौलाना आबिद साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मजमूई तौर पे दोनों बच्चों ने अच्छी तकरीर की और अपने मौजू को अच्छे अंदाज से बयान किया। मैं अगर दोनों में से किसी एक को तरजीह देना चाहूँ तो सुकैना शाहिद साहब, कि उनकी लफाजी और रवानी अच्छी थी, उसके मुकाबले में बाई थोड़ा लड़खड़ाए, कई जगहों पर अटके, उसके मुकाबले में सुकैना शाहिद साहब की तकरीर अच्छी थी। जी बिल्कुल, हमारी बच्ची ने बहुत अच्छे अंदाज से मौजू को निभाया। तलफ़्फ़ुज़ अच्छा था, अदायगी अच्छी थी, बनिस्बत हमारे बिरादर के कि वो थोड़ा सा डगमगा गए। तो सकीना शाहिद जो है यकीनन आज ठीक है। अच्छा, बस आपके उलमा कराम के मुताबिक फ़ैसला तो हो गया, क्योंकि अब मैं किसी एक के लिए भी बोलूँगा तब भी मेरे ख्याल से सुकैना शाहिद ही फाते होंगे, कि दो की राय जो है सुकैना के लिए है। लेकिन मैं सुकैना को आपको बताता चलूँ कि आपने जब वो बोला था ना निगहबानों, तो वो निगहबानों नहीं है, निगहबान आपने बोला था, जबकि वो है निगहबानों। और जब आपने हज़रत अली का नाम लिया तो किसी भी हस्ती का नाम लेते हैं, जैसे रसूलुल्लाह खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेते हैं तो सिर्फ मोहम्मद नहीं कहते, आगे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी लगाते हैं। जब आपने हज़रत अली का नाम लिया तो आगे आपने अलैहिस्सलाम बोलना चाहिए, एहतराम होता है। और दूसरी चीज़ ये कि आपके दलाइल बड़े मजबूत थे, अच्छे थे। अब आते हैं नजफ अहमद की तरफ। आपका अंदाज़ बयान कमाल था, आपकी दलाइल भी बड़ी अच्छी थी, लेकिन फंबल आप 2-3 जगह पर होते रहे। अच्छा, कुछ जो मेजर गलतियाँ थी उसमें तलफ़्फ़ुज़ की थी ज़ुबान, तो ज़बान असल तलफ़्फ़ुज़ है ज़बान, ठीक है। दूसरी चीज़ ये कि बर्बरियत लफ्ज़ है, आपने उसको रवानी में बड़बड़ियत निकल गया था। अभी आप ये वीडियो जब अपलोड होगी तो आप देख लीजिएगा यूट्यूब पर। और जहाँ आपने इस्तेमाल किया लफ्ज़ कि इज़्ज़त लूटी जाती रही होना चाहिए, आपसे रही निकल गया था, तो ये गलतियाँ भी थी। इसके बावजूद भी बहरहाल फ़ैसला 2 के मुताबिक तो हो गया, तो आज की फातेह हैं सुकैना शाहिद साहिबा। लेकिन आपको मैं अगर अपने हिसाब से कंपेयर करूँ तो आधे नंबर का भी फ़र्क, शायद बहुत ज़्यादा फ़र्क होगा, बहुत आधे नंबर से भी बहुत कम का फ़र्क है। आप दोनों को यूथ फाउंडेशन की जानिब से मिलता है गिफ्ट हैम्पर, और कराची की शान पिज़्ज़ा स्पाइस की तरफ से, और 9 ट्रैवल टूर्स का भी शुक्रिया। आज की फातेह सुकैना शाहिद साहिबा, बहुत बहुत शुक्रिया।